So in this session, we will discuss login and log out in Servlet using session. So login and log out mechanism using session. Okay, let's try to understand. So already have created this project. In this project, we have index.html file. Let's now we change the index.html file. Now here we create one index.html file. Here we create one just form, and here username and password. I'm taking the input from the user. Okay, so now this index.html form is created. Here we have login servlet. Okay, let's now we create one servlet that is a login servlet. Login form servlet, login servlet. So login servlet already we have created. So in this login servlet actually, okay, let's have created one more login servlet. So now new I create a servlet. Give a servlet name is a login in servlet. Login in servlet. I give the name as a login in servlet. Login. Next, finish. So I've created login servlet. In this servlet, what we are doing? In this servlet, we are reading the information from the index.html page. Okay, here we create one more servlet that is a home servlet. Let's we create one more servlet, home servlet. Okay, first what we are doing? In index.html file, in the action, we specify the servlet and login in servlet. Now we create one more servlet that is a home servlet. So I'm created one more servlet that is a home servlet. I'm created here one more servlet. I give the servlet name is a home servlet. Home servlet. Now finish. This is the home servlet. Now once we create a home servlet, now we create one more page. First of all, we created all the page we have required. One is a profile page. Profile page.html. I'm created one profile page.html. Okay. So go to the index.html page. Sorry, go to the web content. Now we create one HTML file. I give the HTML file name is a profile page.html. Profile page.html. This is HTML file that we have created. In this profile page.html, simply I'm writing one heading. This is the profile page. Nothing, I'm writing one heading. H1 tag here we are using. And H1 tag we are writing this is the profile page. Okay, one by one. Now have created login servlet. First of all, in login servlet, we read the information which is coming from the client. So now here we read the information accepting the username and password. Okay, so now coming to the login in servlet. In login in servlet, inside do get method. Okay, index.html file. Open the index.html file. Here we are using method. Which method? Post method. Okay, come into the login in servlet. Go to the post method. Okay, inside post method, what we are writing? We are taking the user. We are reading the form parameter value. How we can read? Request that get parameter, username and password. We are reading both username and password. Watch here. Here form parameter is a username and password. So login in servlet. In login in servlet, we are reading the form parameter value. Once we read the form parameter, then what we need to do? We need to check the username and password.
Okay, here we need to read the username and password. Let's here we create a username and password. So how we can check? So here we just simply static checking. If I'm checking username dot equals ignore case, I'm reading that if username is John and password dot equal ignore case is the John. If username and password both are John, if the username and password is matches, then what we need to do? If username and password is matches, then we require to create a session. And if user is validate, what we are doing when user login, if user is validate, we are storing the username into the session object, and then we are redirecting user into home page. Okay, so here what we are created, if user is valid, then what we need to create a session. So create a session. Here session object, सेशन क्रिएट करना है, लेकिन सेशन फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है. इफ यूजर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आएगी तो http session object, here we create a session using request object request dot get session. अगर रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम आ रही, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिक्वेस्ट किसी सेशन से एसोसिएट नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, नया सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. इफ रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड विद सेशन, देन इट विल रिटर्न द सेम सेशन ऑब्जेक्ट. यस ना, मतलब हम यहाँ पे हमें सेशन ऑब्जेक्ट चाहिए. अगर रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड है तो एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट चाहिए. इफ द रिक्वेस्ट ऑलरेडी इज नॉट एसोसिएटेड विद सेशन, देन क्रिएट अ न्यू सेशन. उसके बाद हमें यूजर नेम क्या करना है, यहाँ पे जो यूजर नेम रीड किया, इस यूजर नेम को हमें क्या करना है, सेशन में रख देना है. तो कैसे प्लेस करेंगे, सेट एट्रीब्यूट. अब यहाँ पे हमने क्या दे दी, की दे दी हमने नेम, और इसकी वैल्यू क्या है, यूजर नेम. उसके बाद हमने क्या कर दिया, अब हमें क्या करना है, मूव कर जाना है. किस पेज के लिए, होम पेज. तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट. और यहाँ पे हम किस पेज के लिए जाना है, हमारा होम सर्वलेट हमने क्रिएट किया है. होम सर्वलेट हमारा, होम सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न क्या है, /होम सर्वलेट. तो लॉगिन सर्वलेट पे आइए, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स आपका होम सर्वलेट रीडायरेक्ट कर दिया होम सर्वलेट की, /होम सर्वलेट. ओके, अब होम सर्वलेट पे जैसे आएगा तो होम सर्वलेट में क्या करेगा, अगर मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड वैलिड नहीं है तो हम लोग एल्स में चाहो तो एक मैसेज दे सकते हो कि इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड. The condition is false, then what we need to do, we need to print one message that is invalid username and password. अब हम कहाँ जाएंगे, होम पेज में, होम सर्वलेट में. और जैसे होम सर्वलेट में जाएंगे, होम सर्वलेट में क्या करना है, मतलब उस यूजर की यूजर नेम रीड करना है. तो यूजर नेम कैसे रीड करेंगे, तो होम सर्वलेट पे गए, दिस इज द होम सर्वलेट. नाउ जैसे होम सर्वलेट पे आए, हम हटा देते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया, सेशन ऑब्जेक्ट पहले बात तो क्रिएट किया. सेशन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, अब देखेंगे. http सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन. अब गेट सेशन मेथड, अगर रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड है सेशन से तो हमें वो सेशन ऑब्जेक्ट मिल जाए. अगर ऑलरेडी एसोसिएटेड नहीं है तो सेशन ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. तो हम इसके पैरामीटर क्या पास करेंगे, फॉल्स. अगर रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ये नल रिटर्न करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा. अगर रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेशन से एसोसिएटेड है तो वो सेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा.
तो यहाँ इफ अगर सेशन नॉट इक्वल टू नल है, सेशन नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रीड करेंगे सेशन से यूजर नेम की। तो स्ट्रिंग, हमने कहा स्ट्रिंग यू नेम इक्वल टू सेशन, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे की का क्या थी, नेम की थी, हमने रीड कर ली इंफॉर्मेशन, टाइप कास्ट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन रीड करना। इस इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद हमने कहा वेलकम टू द यूजर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर को वेलकम बोलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, आउट, ओके, यहाँ पे हम लोग प्रिंट राइटर भी क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब प्रिंट राइटर की हेल्प से पी डब्ल्यू डॉट राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम, वेलकम प्लस यू नेम, वेलकम यू नेम। अब इसके अलावा हमने क्या किया, हमने दो एंकर टैग क्रिएट किया। तो चलिए हम लोग प्रिंट डाटा HTML के अंदर लिखते हैं पी डब्ल्यू डॉट राइट, यहाँ पे हम लोग इसको विद इन डबल कोड में लिखना है, दो br टैग और एंकर टैग। देखिए इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। हम्म, हम्म। चलिए देखिए br टैग, br टैग, यहाँ पे एंकर टैग यूज किया है href इक्वल टू सिंगल कोट में हमने दे दिया प्रोफाइल सर्वलेट। कहाँ पे जाना है, एंकर टैग यहाँ पे क्लोज भी कर दिया और हमने लिखा माई प्रोफाइल, माई प्रोफाइल। सर मेरे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई माइट बी लेट फॉर दिस क्वेश्चन, बट ये बी आर स्लैश और स्लैश बी आर में क्या फर्क है? कौन सी टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। नहीं सर, अगर हम कभी कभार मैंने देखा है ये जो क्लोजिंग टैग है, क्लोज वाला, ये कभी हम पहले भी लिख देते हैं बाद में भी लिखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, पहले कभी HTML में सब कुछ चल जाता, ब्राउजर रीड कर लेता बाय डिफॉल्ट। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब है जब टैग का नाम लिखोगे उसके बाद वहीं क्लोज कर दोगे, इसका मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग। ऐसा नहीं हो सब कर रहे हैं, प्रॉपर वे जो होता है कि पहले क्लोज कर दिया फिर नाम लिख रहे हो टैग का, ऐसा कहाँ होगा, हमने पढ़ा होगा, कहीं लिखा ही नहीं होगा। ओके सेल्फ सर। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब टैग का नाम स्टार्ट किया, और टैग अगर सेल्फ क्लोजिंग है मतलब उसको, ये देखिए ये ओपन टैग हुआ, उसके बाद अगर यहाँ पे क्लोज करो ये क्लोजिंग नॉर्मल, टैग ओपन और क्लोज। लेकिन सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब जैसे टैग स्टार्ट किया वहीं पे हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए इसी तरह हम लोग एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं। सर्वलेट बनाया था। और यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग आउट सर्वलेट और लॉग आउट। तो ये हमारा होम सर्वलेट है। पहले आप जैसे यूजर नेम पास रीड करेगा, यूजर नेम वैलिड होगा, तो पेज किसको होम पेज में चला जाएगा और होम पेज ओपन हो जाएगा। जैसे होम पेज ओपन हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, होम पेज में दो ऑप्शन आएंगे, आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो उसमें और लॉग आउट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग आउट सर्वलेट बनाते हैं। लॉग आउट सर्वलेट कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो पहले हम लोग एक सर्वलेट और क्रिएट करते हैं, लॉग आउट सर्वलेट, सारे सर्वलेट सर क्रिएट आर कर यू लेते श्योर कि इसके अंदर सिंगल कोट्स आएगा HREF में? हैं। आप जब विद इन डबल कोट में कोई चीज लिख रहे होते हैं पूरी चीज स्ट्रिंग फॉर्म में, अगर कोई चीज विद इन, वैसे कुछ लिखो चाहे डबल कोट, एक चीज ध्यान रखिएगा
कि विद इन डबल कोड में जब कोई चीज पूरा कर लिख लेगा, अगर कोई चीज ऐसी है जो स्ट्रिंग फिर से है तो उसको फिर से विद इन डबल कोड में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पूरा विद इन, ये पूरी स्ट्रिंग हम मेजर कर रहे हैं ना। इस स्ट्रिंग के अंदर जो एट्रीब्यूट लिखेंगे वो सिंगल कोड में लिखेंगे, नहीं तो फिर से आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्केट स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी ना विद इन डबल कोड न्यू स्ट्रिंग। तो ये पूरा हमने, यस सर। ये हमारा पूरा टेक्स्ट क्या है, पूरा स्ट्रिंग है। अब इस एट्रीब्यूट को भी हमें स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना है ना, तो यहाँ से क्या है, इसको फिर हम लोग विद इन डबल कोड के अंदर यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे। तो ऐसा ये स्ट्रिंग फॉर्म में पूरा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा ऐसा स्ट्रिंग फॉर्म जा रहा है ना, विद इन डबल कोड में यस ऑलरेडी इसको हमने लिख रखा है ना। यस सर। चलिए क्रिएट करते हैं नया सर्वलेट, और यहाँ पे सर्वलेट का नाम दे देते हैं लॉग आउट सर्वलेट। ये लॉग आउट सर्वलेट क्रिएट। लॉग आउट सर्वलेट में क्या करना है, जैसे हम लॉग आउट पे क्लिक करें, अगर हमारा जो सेशन क्रिएट हुआ है वो लॉग आउट हो जाए, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा सेशन क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। और सेशन लॉग आउट होने के बाद हमें वहां पे कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे। तो चलिए पहले हम लोग सेशन क्या करते हैं, गेट करते हैं करंट सेशन। करंट सेशन कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन केवल से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे लॉग आउट पे क्लिक किया, करंट सेशन गेट किया। करंट सेशन कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। जैसे सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हम इसको क्लियर कर देंगे, और क्लियर करने के बाद हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज में। तो हमने क्या किया, इसको सेशन डॉट इनवैलिडेट मेथड कॉल किया, सेशन आपका क्लियर हो गया, उसके बाद हमने मूव कर गए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज। तो ये हमारा क्या होगा, लॉग आउट। उसके बाद हम प्रोफाइल सर्वलेट एक बनाते हैं। प्रोफाइल सर्वलेट में क्या करना है, हम अपनी प्रोफाइल अगर आपको चेक करनी है तो प्रोफाइल सर्वलेट में प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो देखिए चलिए हम एक प्रोफाइल सर्वलेट बनाते हैं। हमने एक सर्वलेट क्रिएट किया और सर्वलेट का नाम दिया प्रोफाइल सर्वलेट। चलिए प्रोफाइल सर्वलेट आया। तो पहले तो हमने प्रोफाइल सर्वलेट में क्या किया, सेशन गेट किया, चेक किया कि सेशन चेक गेट किया। कैसे सेशन गेट करेंगे, जिस पर्सन ने लॉगिन किया उसकी प्रोफाइल चेक करनी है, तो हमने सेशन गेट किया। तो सेशन सिंपली गेट कर सकते हैं, http सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, सेशन ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जैसे सेशन ऑब्जेक्ट मिला हम चेक कर लेते हैं सेशन नल तो नहीं है। अगर नल है तो रीडायरेक्ट कर देंगे, किस पेज के लिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज के लिए। तो चेक किया सेशन इज नल और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमने यहाँ पे चेक किया इफ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, हमने इसके गेट एट्रीब्यूट की वैल्यू ले, इसमें एक एट्रीब्यूट हमने नेम नाम का बनाया था, अगर उसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब सेशन एग्जिस्ट कर रहा है, सेशन में भी एक एट्रीब्यूट हमने स्टोर करके रखा है। अगर सेशन क्या है, नॉट नल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम एक प्रोफाइल पेज को ओपन कर देंगे, प्रोफाइल पेज डॉट एचटीएमएल रीडायरेक्ट कर देंगे। अगर सेशन नल है तो फिर हम लोग कैश पेज को रीडायरेक्ट कर देंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज को। तो हम किस पेज के लिए रीडायरेक्ट हो जाएंगे, इफ सेशन इज नल देन वी रीडायरेक्टिंग टू द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज। चलिए प्रोफाइल पेज डॉट एचटीएमएल हमने बनाया हुआ है कि नहीं देखते हैं। प्रोफाइल पेज डॉट एचटीएमएल पेज बना हुआ है, सिंपल यहाँ पर प्रोफाइल पेज है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या है, सबसे पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल समझते हैं, रन करते हैं एप्लीकेशन को, और वन बाय वन फ्लो ऑफ कंट्रोल समझते हैं। रन किया, नेक्स्ट, फिनिश। देखिए ये आपका है सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज। यहाँ पे हमने इनपुट किया
जॉन, यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट किया। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे पेज किसको जाएगा, लॉगिन सर्वलेट पे जाएगा। लॉगिन इन सर्वलेट पे नहीं रिसोर्स मिल रहा है, तो पहले लॉगिन इन सर्वलेट को देखते हैं। इसका यूआरएल पैटर्न क्या है, यूआरएल पैटर्न लॉगिन सर्वलेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे जाते हैं। सर वही करना पड़ेगा ना, माय फर्स्ट वेब ऐप और स्लैश होम सर्वलेट। लॉगिन फॉर्म नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एक बार यूआरएल पैटर्न मैच कर लेने दीजिए। तो उसको रन कर दिया। चलिए अब इसमें हम लोग यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं। तो जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाला तो यहाँ पे पेज रिक्वेस्ट किस पेज के लिए जाएगी, किससे, लॉगिन एचटीएमएल के लिए। लॉगिन एचटीएमएल क्या करेगा, डेटा रीड करेगा। चलिए लॉगिन सर्वलेट ओपन करते हैं। इसने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड रीड किया। अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच कर गया तो क्या किया, यूजर नेम को सेशन में स्टोर कर दिया और रिस्पॉन्स किसको रिडायरेक्ट कर दिया, होम सर्वलेट के लिए। देखिए हमारा सर्वलेट रिस्पॉन्स कौन सा, होम पेज ओपन हो गया। अब होम सर्वलेट में क्या किया, देखिए हमने होम सर्वलेट में हमने उस सेशन की हेल्प से उस यूजर को रीड किया और वेलकम टू यूजर लिखा और यहाँ पे हमने दो एंकर टैग डिस्प्ले किए। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल और लॉग आउट। अब हमें प्रोफाइल पेज ओपन करना है। प्रोफाइल प्रोफाइल पेज ओपन करना है। माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल ओपन हो गया। दिस इज द प्रोफाइल पेज। अब हमें यहाँ अगर लॉग आउट करना है, अब देखिए अब डायरेक्ट एक बार लॉग इन कर लिया है तो यहाँ से आप कहीं भी पेज में मूव कर सकते हो। लेकिन जैसे अगर हम चाहते हैं सेशन को लॉग आउट करना चाहते हैं, जैसे हमने अब सेशन पे लॉग आउट करेंगे सेशन इनवैलिडेट हो जाएगा और जो हमारा हम मूव किसको कर जाएंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ गया, मतलब फिर से आप लॉग इन कीजिए और आप क्या कीजिए, इंटर कीजिए एप्लीकेशन। अब इंटर एप्लीकेशन में इंटर हो गए। अब इस एप्लीकेशन में देखिए यूजर वही है। देखिए अगर एक चीज देखें, आप यूजर ने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हुआ गया, लेकिन अब यूजर डायरेक्ट अगर माई प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो वो माई प्रोफाइल पे एक्सेस कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि सेशन सेम ये ओल्ड रिक्वेस्ट समझ रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो नहीं गई लेकिन सेशन हमने मेंटेन किया जिससे वो समझ रहा है कि ऐसा यूजर ओल्ड यूजर है। अगर हमने इसको लॉग आउट कर दिया, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की जगह हम प्रोफाइल सर्वर, एक मिनट 1 मिनट, हम लोग यूआरएल पैटर्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड इनपुट किया, लॉगिन पे क्लिक किया, होम सर्वलेट आया, माय प्रोफाइल पे किया, माय प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए होम सर्वलेट है यूआरएल पैटर्न। लॉग आउट कर देते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट अगर होम पेज एक्सेस करें, होम सर्वलेट, देखिए अभी होम सर्वलेट में डायरेक्ट एक्सेस करने पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा सेशन नहीं क्रिएट हो पाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे लॉगिन यूजर से कर रहा है, आप इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिस सेशन में होम यूजर नेम इंफॉर्मेशन मेंटेन कर देगी। अब पूरे इस एप्लीकेशन में जहां पे भी जाना है तो वो ओल्ड यूजर की तरह ट्रीट हो रहा है। प्रोफाइल अपने देख सकते हैं, सब कुछ जिस यूजर ने लॉग इन किया और जैसे लॉग आउट करोगे वापस आपको रीडायरेक्ट कर देगा किस पेज के लिए, लॉग इन पेज के लिए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से हम लॉग इन एंड लॉग आउट एप्लीकेशन क्रिएट किया यूजिंग सेशन। क्लियर।